آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں پر راحلہ حمید نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ سے ان کے خاندان کی بحالی ممکن ہوئی، ان کے لیے نیا گھر تعمیر کیا گیا اور انہیں روزگار فراہم کیا گیا تاکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکیں۔ لیکن فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ان کا نشانہ صرف سیکیورٹی فورسز نہیں بلکہ عام بلوچ مرد، خواتین اور بچے بھی ہیں۔ انہیں بلوچستان میں تعلیم، ترقی، روزگار، امن اور خوشحالی برداشت نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچ نوجوان مایوسی، غربت اور خوف کے ماحول میں زندگی گزاریں۔ بی بی حنیفہ اور حفصہ کا قتل دراصل ہر اس بلوچ خاندان پر حملہ ہے جو محنت، تعلیم اور ترقی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے عناصر بلوچ قوم کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے دشمن ہیں۔ میں حکومت بلوچستان کی جانب سے متاثرہ خاندان کی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس بزدلانہ حملے میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بلوچستان کے امن کے خلاف سازش کرنے والوں کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلوچستان کی عوام، آج ہم تمام خواتین پارلیمنٹیرین دہشت گردوں کے خلاف جو دہشت گردی بلوچستان میں کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے۔ امن، ترقی اور تعلیم کی خوشحالی کا ہمارا سفر اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم بلوچستان میں کسی بھی تنظیم اور کسی بھی اعلی کار کو اجازت نہیں دیں گے کہ بلوچستان کی امن امان خراب کرے۔ جی آپ لوگ خود بھی کہیں نہ کہیں خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، تیسری دفعہ پارلیمنٹ میں آپ لوگ آتے ہیں مخصوص نشستوں پر۔ آپ لوگ اپنے جو سیاسی جماعت کے جو خواتین ہیں انہوں نے بھی آپ لوگ خلاف احتجاج کیا ہے، تو آپ لوگ دوسرے خواتین کو حقوق دینے کی کیسے بات؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، پہلے تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اسی کے حوالے سے آپ لوگوں کا سوال آئے گا۔ آپ لوگ سیاست کی طرف، پارلیمنٹ کی طرف آ گئے، اس پہ بھی میں جاؤں گی۔ لیکن سب سے افسوسناک یہ ہے، یہ جو مکرو چہرہ ہے دہشت گردوں کا، وہ دنیا کو دکھاتی ہے جو بلوچ غیرت کی بات کرتے ہیں، ننگ و ناموس کی بات کرتے ہیں، خواتین کی جو ہے عزت اور حفاظت کی بات، یہی نیریٹو بیچتے ہیں نا نوجوانوں کو۔ تو یہ کون سی بلوچیت ہے، یہ کون سا غیرت ہے کہ آپ گھروں میں گھس کر اس طرح کی بیوہ خاتون جو اپنی روزگار کے لیے ایک گورنمنٹ اسکول میں آیا کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ان کی 17 سالہ بیٹی، آپ بلوچ ہو کر بلوچوں کے گھر میں گھس کر اس طرح کے جو مظلوم بلوچ ہیں جن کے آگے پیچھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی گھر کا مرد نہیں ہے، ایسے خواتین پہ جو حملہ آور ہو کے ان کو شہید کرتے اور غیرت کی، ننگ و ناموس کی اب بات نیریٹو ان کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے بلوچستان میں، نہ ہی یہ نیریٹو بکے گی کیونکہ یہ اپنی شکل دنیا کو دکھا چکے ہیں، تمام بلوچستان کو دکھا چکے ہیں۔ غیرت، ننگ و ناموس کی کوئی جنگ نہیں ہے، صاف واضح ہو چکا ہے فتنۃ الہندوستان کی جنگ ہے۔ دوسری بات آپ نے بات کی کہ خواتین جو ہیں 3-4 دفعہ اسمبلیز میں آ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اس اسمبلی میں آئی ہوں اور میں ایک پولیٹیکل ورک کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی سیاست جو ہے بہت گراس روٹ لیول سے شروع کیا ہے، کونسلر سے میں MP بنی ہوں، یہ پورا ایک جرنی میں نے طے کیا ہے۔ اگر باقی خواتین کی بات کریں تو پارٹی میں ان کی جو ہے وہ قربانیاں ہیں، پارٹی کے لیے دن رات محنت اور کام کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پارٹی قابلیت کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر اپنی خواتین کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں کسی نے کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہر کسی نے اپنی قابلیت پہ، اپنی محنت پہ یہ جگہ حاصل کی ہے۔ میڈم یہ بتائے گا کہ اس طرح کے واقعات جیسے ابھی پیش آ رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا اس کا ابھی حکومت کے پاس حل کیا ہے؟ دوسرا، کچھ ٹائم پہلے ایک خاتون جس کے والد کو مارا گیا رشتے کے تنازع پر، اس کا کیا حل نکالا گورنمنٹ نے؟ اور دوسرا، 15 اگست رات کو چمن میں بھی 2 خواتین کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے کیا دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اسما چتک کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی حکومت نے ایکشن لیا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ملزم ہیں جنہوں نے اسما کے والد کو شہید کیا اور اس سے پہلے خاندان کے 2 اور مرد شہید کیے تھے، ان کے گھر کو بھی مسمار کیا ہے
उनकी जो है वो वारंट गिरफ्तारी है, कानून एक्टिव है, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा और आसमा को इंसाफ मिलेगा। दूसरा, आपने ये हमारी जो पश्तून बेल्ट में ये वाक़या हुआ था उसमें ये जो हुकूमती जो तहकीकात और जो मालूमात हैं इसमें ये ख़ानदानी कोई मसला था। और तीसरा जो ये केस हुआ है इसमें तो कुल्लम कुल्ला दहशतगर्दी है, मजलूम औरतों पर हमलावर होकर इस तरह चादर और चारदीवारी की पामाली करना, दुनिया को बताना हम कितने बुज़दिल हैं जो मजलूम औरतों पे हमला करके हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़े जो है वो कारनामे अंजाम दिए हैं और बहुत बड़े फाते हैं इस तरह ख़वातीन पे जो हमला करते हैं। घर के अंदर भी लोग महफूज नहीं है, तो ये कोई फेलियर आप नहीं समझती कि कहीं पर है? और ये भी हम नहीं देखते कि किस तरह के वाकयात होते हैं उसके बाद कोई खुद एहसाबी का वो नहीं किया जाता, ना किसी मजाज ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ना कोई पूछताछ की जाती है। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? क्या ये ओवरऑल एक फेलियर नहीं है कि घर में भी लोग महफूज? देखें, ये फतनतुल हिंदुस्तान है और कोई बात ढकी छुपी नहीं है बलूचिस्तान में, ये हम सब जानते हैं। ये फतनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं जो इस तरह किसको हम इसमें जो है वो FIR करें। फतनतुल हिंदुस्तान की जो ये लोग छुपे होते हैं पहाड़ों पे, हाइड आउट से इनकी छुप कर आकर वार करते हैं, उनके निशाने पे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आम बलोच भी हैं। अब आम बलोचों में औरतें जिनको हर चीज़ से मुस्तस्ना किया गया है उन औरतों पे हमलावर हो रहे हैं। तो इसकी जो शनाख्त है हुकूमत को साथ देने में अवाम की भी किरदार है, अवाम ने भी उनको मुकम्मल मुस्तरद करना है। इस तरह आबादी में घुस कर जो औरतों पे हमला करते हैं उनके खिलाफ खड़े होना होगा। लेकिन सबसे बहुत मैं जो समझती हूँ जो अलमिया है वो ये कि इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार खुद को कहते हैं, चाहे वो BYC हो, चाहे हमारे पाकिस्तान में बाकी तंजीमें हो, चाहे पेन नॉर्वे हो, जो फतनतुल हिंदुस्तान का कोई भी प्रोपेगेंडा हो उसको दुनिया में उछालने में और उसको हाईलाइट करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इस तरह के वाकयात में आपने देखा है BYC का कोई बयान, इन बीबियों का कोई बयान देखा है बलूचिस्तान की इन खवातीन के खून के खिलाफ? नहीं। ये इनको सही लगता है, इनको सही जो फतनतुल हिंदुस्तान कर रही है, जो स्पॉन्सर टेररिस्ट करते हैं, जो दहशतगर्द करते हैं, खवातीन को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, वो कोई इंसानी हुकूक के ज़मरे में नहीं आते। लेकिन अपनी प्रोपेगेंडा के लिए सारा दिन ढूंढते रहते कि कहाँ से हमें कुछ मिले। हम बलोच गैरत की बात करें, नंगो नामूस की बात करें, मजलूमियत की बात करें, तो इनके भी मकरू अज़ाइम और मकरू चेहरे दुनिया ने देखे हैं और एक्सपोज हो चुके हैं। तो हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है हुकूमत तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के मामलात में ग्रे में ऑपरेट करती हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये फतनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उस तरह वो आइडेंटिफाइड नहीं है कि किसी जगह पे हो, किसी घर पे हो, हुकूमत जाए उनको गिरफ्तार करे। ये छुपे होते हैं आबादियों में या पहाड़ों में, इस तरह के मजलूमों पे हमला करते हैं। अच्छा मैडम, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 वाक़यात पीछे लेकिन अक्सर शिकायत आ रही है कि वही जो ख़वातीन खतरा होती है उसकी जो है तहक़ीक़ात में तकनीक होती है, इस हवाले से हमें मैं बोलूँ आप कुछ बोलना है इसमें? देखें, जो रूटीन का है, जब वो जो भी मसला होता है, जो कत्ल हुए हैं, उसके मुख्तलिफ महरक़ात हैं। कुछ ज़ाती दुश्मनी के तहत होता है, किसी का बैकग्राउंड कुछ और होता है। तो गवर्नमेंट तो जो भी कानून अपना रास्ता लेता है और कानून उसी हिसाब से हर केस को डील करता है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो ख़ास हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें हमारी जो है 2 ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे बाकायदा मालूम हुआ है कि उनको बाकायदा तशद्दुद करके जो उनको फायरिंग करके उनको शहीद किया गया है। घर में बैठी ख़वातीन को इस तरह से, मैं तो इसकी इंतहा से ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ। मेरे ख़्याल में कोई भी ज़ी शऊर इंसान जो भी इस वक्त बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में या कोई भी होगा वो इस चीज़ की मज़म्मत करेगा कि वो एक माँ बेटी अपनी एक रोज़गार के लिए एक स्कूल में काम करती थी और अपनी बेटी को पालती थी। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि उनके कत्ल से क्या जो है हासिल किया गया है या उनको कत्ल करने की क्या वजह थी। अगर ये दहशतगर्दी के इस ज़ुमरे में कि यानी कि ख़वातीन को काम से रोकना या उनको जो है उनकी मुहब्बल वतनी की सज़ा देना, तो मुझे तो नहीं ये समझ आती कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। 21st सेंचुरी में हम बैठे हैं और 21st सेंचुरी में इतना वायलेंस, तो मैं ज़ाती तौर पे मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखती हूँ कि वायलेंस किसी भी चीज़ का हल नहीं है।
اگر جو دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین کو اس طرح شہید کر کے، یا جو ہمارے خواتین ورکرز ہیں جو اسکول میں کام کر رہی ہیں ان کو اس طرح شہید کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے، تو اس سے تو میرے خیال میں نہ تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے، بلکہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی بہت حد تک ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی پریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذمتی بیان، مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ مذمتی بیان کہیں سے بھی نہیں آیا، اور جیسے مینا نے کہا، کہیں کسی نے بھی یہ کہنے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کی کہ 2 خواتین گھر میں بیٹھی اور ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں اور اپنے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس سے وہ ان کو اپنے کیا مقاصد حاصل ہوں گے۔ پوری دنیا میں وائلنس کے اگینسٹ کام ہوتا ہے، یہ 1-2 خواتین کا قتل نہیں ہے۔ باقی 2-4 خواتین کا آپ کہہ رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان 2 خواتین کا بیک گراؤنڈ چونکہ معلوم ہے اس لیے اس پہ بات کر سکتی ہوں۔ باقی 2 کا جو آپ کا سوال ہے، 2-4 خواتین کا، ان کا یقیناً ان کے جو بھی بیک گراؤنڈ ہوگا اور اس کے مطابق، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانون اپنا راستہ دے۔ جو کل قلعہ عبداللہ کی جو 2 خواتین کے لیے جو بات کی گئی، تو اس میں جو پہلی نیوز چلی تھی اس میں یہ تھا کہ وہ کہیں پہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور کسی دکاندار کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا ہے، وہاں پر فائرنگ ہوئی، تو گاڑی انہوں نے آگے جس طرح سے بڑھائی ہے تو پیچھے ان کے جو چوکیدار تھے یا سیکیورٹی والے، انہوں نے جو ہے وہ فائرنگ کی، جس میں 2 خواتین جو ہے وہ شہید ہوئیں، جو قلعہ عبداللہ کا تھا، جس میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کا جو پہلی اس میں آپ لوگوں کی نیوز جو اس پہ چلی تھی وہ یہی تھی کہ وہ کراچی یا ان کے وہاں سے کہیں سے آئے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر جو وہ کیا گیا۔ اور دوسرا، جس طرح سے میرے بھائی نے وہاں سے بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹیرینز خواتین ان کا حق مارتی ہیں۔ کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، یہ تو پارٹی کے اوپر سے ان کی چیزیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے جو لے رہے ہیں۔ اب جس طرح مینا صاحبہ نے کہا ان کا فرسٹ ٹینیور ہے وہ آئی ہوئی ہیں، ہادیہ صاحبہ کا فرسٹ ٹینیور ہے وہ آئی ہوئی ہیں، میرا سیکنڈ ہے، اور راحیلہ صاحبہ کا غالباً میرے خیال میں تیسرا ہوگا۔ تو لیکن ان کی پارٹی ان کو دیکھ کے، وہ ظاہر ہے اپنی پارٹی کے لیے اپنی ان چیزوں کو لے کے آگے چلتی ہیں، سینیورٹی کے حوالے سے بھی، اور اپنے وہ صرف ایک بلوچستان کی تو یہ ایشو نہیں ہے، یہ تو آپ کا پنجاب میں بھی، سندھ میں، KPK میں، سب جگہوں پر ہے، تو اس کو ہم ایک صرف بلوچستان کے لیے کیوں ہائی لائٹ کریں؟ تو یہ سب کی ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، 3-3 4-4 ٹینیور میں بھی آ رہے ہیں۔ جو خواتین پارلیمنٹیرین جس کو ناانصافی قرار دیا، وہ برفباری کے دوران بھی انہوں نے احتجاج کیا، بالکل 2 دفعہ آ رہی ہیں، 3 دفعہ، تو ان کو کیوں موقع نہیں ملتا؟ یا آپ لوگ نئے لیڈرشپ پر یہ فاصلے پیدا نہیں کر سکتے تاکہ نئے خواتین ایسے ہوں؟ تو نئے خواتین تو ابھی آپ دیکھیں اس دفعہ پارلیمنٹ میں مینا صاحبہ آئیں، شہناز عمرانی صاحبہ آئی ہیں ہماری پیپلز پارٹی کے اسے، وہ تو ان کو تو دونوں فرسٹ ٹائم ان کی آئی ہوئی ہیں، اور دوسری پارٹیز کا بھی ان کا جو ہے اس طرح سے۔ بہرحال خواتین کے اس حوالے سے بالکل یہ بات کہیں گے کہ خواتین کو جس جگہ پہ بالکل تحفظ دینا چاہیے، اور ان کی جس جگہ پر بھی کہیں پر بھی ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، آج جس طرح سے پوری تفصیل سے انہوں نے بتایا بی بی حفصہ اور حنیفہ بی بی کا، کہ ان کو جس طریقے سے انہیں ان کے گھر میں گھس کے ان کو جو ہے تشدد کر کے انہیں شہادت دی گئی یا قتل کیا گیا، تو یہ اس چیز کے لیے بالکل تمام، ہم تو صرف پارلیمنٹیرینز ہیں، بلکہ میرے خیال میں تمام جو بندہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی خدا کا خوف ہوگا یا انسانیت رکھتا ہوگا، ہر بندہ اس کے لیے جو ہے اس کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور وہ اس کے لیے بالکل بھرپور طریقے سے ہماری مذمت ہے، اور صرف نہ ہم اس پہ دوسرے پلیٹ فارمز پر بھی ہماری جو ہے اس کے لیے مذمت ہوتی ہے۔ ہم ایز اے پارلیمنٹیرین اپنی پارٹی کے حوالے سے، اس کے علاوہ وومن کوکس کے حوالے سے، وومن کوکس نے ہمیشہ جو ہے خواتین کے حقوق کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہیں پر بھی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ پریس ریلیزز بھی نکالے ہیں، اور چاہے وہ دہشت گردی کا کسی حوالے سے بھی تعلق ہو، چاہے وہ ایسڈ تھروئنگ کا ہو، یا کسی خاتون کو ہریسمنٹ کا ہو، یا کسی اور طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، کوئی بھی چیزیں جس طرح سے بھی ہیں، کبھی بھی خواتین اس طرح سے پارلیمنٹیرینز نہ خاموش بیٹھی ہیں، نہ وہ خاموش بیٹھیں گی۔ اور جو یہ دہشت گرد ہیں
जिन्होंने ये किया उनको सजा भी मिलेगी। और इनके लिए जाहिर है आज जब इस जगह पर सब बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इट मीन्स के जाहिर है इस चीज को जो है एक इशू है जिसको लिया जा रहा है ना। जी, लेकिन जो सफाकियत हम देख रहे हैं इससे पहले तो जिंदगी में हमने पूरी तारीख में हमने कभी नहीं देखा कि खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया जाए, लेकिन सफर करने वाली खवातीन के महफूज नहीं है, गाड़ियों के ऊपर आदम फायरिंग होती है, उसमें खवातीन शहीद हो जाती हैं। इसी तरह से ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो यकीनन हमारे लिए लम्हा प्रक्रिया है। इस हवाले से कोई स्टेबिलिटी खवातीन के साथ मिलकर या हमारी जितनी हैं उनको इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, खड़ा होना चाहिए कि खवातीन को बच्चों को तो कम से कम मजालिम का निशाना ना बनाया जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल इसके पर तो दो राय तो है ही नहीं ना, बिल्कुल इसके पर तो कोई दो राय नहीं। और हम तो खुद खवातीन हैं, हमें खुद उस चीज़ का एक एहसास है। और औरत तो एक मजलूम तस्वर किया जाता है, और हमारी रिवायत में चाहे बलोच रवायत हो, पश्तून रवायत हो, उसमें तो औरत को जो है बहुत इज्जत और एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। पहले तो कहीं पर अगर कोई कत्ल होता था, औरत अगर किसी के घर चली जाती थी तो खून माफ हो जाता था। तो ये तो चीज़ें तो जो रवायतें, अगर हम अपनी रवायतों से हट जा रहे हैं तो फिर उन चीज़ों के लिए तो कोई हल नहीं निकलता। यहाँ तक कि हमारे इस्लाम में भी नबी पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी जो उनका हज्जतुल विदा का खुतबा था उसमें भी उन्होंने जहाँ पर और चीज़ें बयान की, उनमें कहा कि ख़वातीन के मामले में अल्लाह से डरो। आप देखें ना, अगर हम अपनी मुसलमानियत के उन तरीके से भी चल रहे हैं तो औरत तो हमारी जो है वो एक ताकतवर भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो मजलूम भी है और कमज़ोर भी है। और निहत्ती औरत और बच्चे वो तो फिर कमज़ोर हैं। ज़ाहिर है अपनी हमारी हुकूमत भी हर जगह पे वो भी एक चीज़ को सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या इक़दाम किए जाएं जिनसे इसको कोई हल बेहतर तरीके से निकल सके। मैं इसमें आपसे एक बात कहना चाहती हूँ इसमें कि देखें इंटरनेशनली लॉ भी हैं दुनिया में, किसी भी मुल्क में, आप खुद माशाल्लाह सहाफ़ी हैं सारे, किसी भी मुल्क में किसी भी सोसाइटी में इसको बहुत कंडम हमेशा किया जाता रहा है। इसके बारे में जैसे गजाला साहिबा ने कहा, इस्लाम में किसी भी मज़हब में मैं कहूँगी, और जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं उसके लिए स्पेशल एक वो होता है कि ख़वातीन और बच्चे उससे एग्जाम्प्ट होते हैं, इवन सीनियर सिटीज़न भी। सो आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पर किस किस्म का जो है वो एक सिलसिला चल रहा है कि जिसमें हम समझते हैं कि हम इस तरह से ख़वातीन पे हमला करके ये मैसेज का क्या जा रहा है। ये बलूचिस्तान की ख़वातीन थी, ये बलूचिस्तान की ही औरतें थी या आपकी अपनी बलोच औरतें थी, उनको मारने से क्या फ़ायदा मिला है? मुझे तो ये, मैंने पहले भी कहा, समझ नहीं आ रही है, और किसी भी ज़ई शऊर इंसान को ये बात समझ नहीं आ रही है। मैं तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चंस के साथ साथ आप इस पे भी लिखें, आप इस पे भी आगे बढ़ें और इस पे लिखें कि हम तो अपनी बात, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप उन बातों को लिखें और उस पर बाकायदा रिसर्च करें कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसमें इन मासूम ख़वातीन को किस बात की सज़ा दी जा रही है। और ये यकीन करें कि ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी पहला आखिरी होगा, ये सिलसिला चल पड़ा है। और इन चीज़ों को हमें शिद्दत से, हर सोसाइटी के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारे सहाफ़ी होते हैं, इसमें खड़े होके इसके लिए इसके पर बात करने की ज़रूरत है। देखिए इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, चूँकि बहुत सेंसिटिव ये मामला है, तो अगर इसी पे फोकस रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी हमारे जो इश्यूज़ मामलात हैं उन पे हम बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही दिल दहलाने वाला एक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, बलूच कौम जो रवायतों की अमीन रही है, हमारी तारीख है, तारीख हमारी रवायतों की बुनियाद पर है, हमारी बाहोट की बुनियाद पर है, हमारी गैरत की बुनियाद पर है। रिंदुल आशार की 30 साल की जो जंग लड़ी की एक औरत की इज्जत की खातिर, एक औरत जो रिंदों की पनाह में गई थी, 30 साल उसकी इज्जत और उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 30 साल जंग लड़ी रिंदुल आशार ने, और कितने लोगों ने अपना खून बहाया। लेकिन ये हमारी तारीख का हिस्सा है कि हम औरतों की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये औरतें एक बेवा, जो मैं समझती हूँ एक बाहोट की तौर पर उसको समझा जाए, एक खातून है, उसके सर पे मर्द का साया नहीं है, तो उसकी तहफ़्फ़ुज़, उसका ख्याल रखना हम बलूच कौम की, मैं समझती हूँ कि हमारे रवायात में, हमारी जिम्मेदारियों में रहा है। और आज इस तरह हमारी हमसायों में आप देख रहे हैं कि ख़वातीन को जाके कत्ल कर रहे हैं और आसपास के जो बलूच हैं वो खामोश बैठे हैं, ये सवालिया निशान छोड़ती है। ये जिस तरह हमारी तारीख को ये मसक कर रहे हैं, ये
अगर इसी देखिए, कौमों की जो तारीख है वो रवायतों के बुनियाद पर कायम रहती है, रहती दुनिया तक, आपकी उसूलों की बुनियाद पर कायम रहती है। हमारी रवायतों को इस तरह जो है वो मलिया मेट कर रहे हैं, तो इस तरह अगर चला तो बलोच कौम सिर्फ, मैं समझती हूँ कि तारीख में बलोच कौम का फिर कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। हमारी तारीखी शनाख्त जो है वो तारीख से मिट जाएगी अगर हमारी जो रवायतों की जिस तरह पामाली हो रही है, हम खामोश बैठे, तो बलोच कल्चर, बलोच तारीख मेरे ख्याल से तारीख का हिस्सा नहीं रहेगा। हम सब ने इसके खिलाफ जो है वो बोलना है, इस तरह की दहशतगर्दों के खिलाफ बोलना है, इस तरह जो औरतों पे जो हमला करते हैं उनके खिलाफ खड़े होना होगा। और ये जो इंसानी हुकूक की जो तंजीमें आज खामोश हैं, वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पूरी दुनिया में खुद को बेनकाब कर चुके हैं, सवाल छोड़ चुके हैं कि उनका बलोचों की गैरत, मजलूम, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो आज वो, अगर उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हर बात पे तो प्रोटेस्ट करते, एटलीस्ट एक बयान तो देते कि इन बलोच जो औरतों को मारा है, माँ बेटी को। इस हवाले से हादिया भी कुछ कहना चाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। हम सबको एक पेज पे खड़े होकर ये चीज़ सोचनी होगी कि ये सिर्फ उनका घर नहीं, हम सब का घर अब महफूज नहीं है। अगर आज उन लोगों ने उस घर पे ये वाक़या किया है, वहाँ पे घुस के उन दो बेगुनाह ख़वातीन को, माँ और बेटी को अगर शहीद किया है, तो हम में से भी कोई महफूज नहीं है। हम सबको एक पेज पे खड़े होकर इस चीज़ को सोचना होगा, इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। रियासत अगर कुछ भी कर लेती है तो रियासत के लिए तो जल्दी तनकीद बनाई जाती है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन इन दहशतगर्दों ने क्या किया? रियासत ने एक बेरोज़गार को रोज़गार दिया, बच्ची को तालीम दी, लेकिन दहशतगर्दों ने क्या किया? इन दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? वो सबकी माँ बेटी थी, आज अगर आज उनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी होगा। हम सबको एक पेज पे खड़े होकर आवाज़ उठानी है। अच्छा मैडम, कोलाब में वाक़या हुआ है, बच्चे भी उसमें शहीद हुए हैं और ख़वातीन भी जो उसमें जख्मी हुए हैं, मर्द भी उसमें जो है ना हलाक हुए, तो इस हवाले से आप लोगों ने कुछ बात करें। देखें, जो सूरा वाला वाक़या हुआ, इसका तो आप लोगों को मीडिया जो हजरात हैं, आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है, आप लोगों ने चलाया न्यूज़ में, लेकिन इसमें कुछ मैं ये बताना चाहूँगी कि वहाँ एक गाड़ी तैयार हो रही थी जिसको दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना था, जिसमें बम्बो बारूद डाले जा रहे थे। उस पे जो है उस गाड़ी पे हमला हुआ और आसपास 2-3 किलोमीटर तक, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी वो तैयार कर रहे थे, जब उस पे हमला होता है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, 2-3 किलोमीटर तक लोगों की जो है वो चार दीवारी कुछ लोगों की गिरी। तो इसके जो हुकूमत की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है और मालूमात हैं वो यही। मैडम, आपने असमा जैसे की बात की, वहाँ पर जो मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया, क्या इस दफा फिर हुकूमत जो है वो एक मुलजिम को नहीं पकड़ सकती? वो मुलजिम जो है वो अफगानिस्तान या ईरान फरार हो गया? नहीं, असमा जतक के मामले में देखें, आपने हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमती जमात ने खुद असेंबली में खड़े होकर असमा जतक के लिए आवाज़ उठाई है, बल्कि एक हमारे मेंबर ने जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड किया है उस पर। तो देखिए, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं अगर हुकूमती मौक़िफ़ आपको दूं तो आसमा वाले केस में वो बंदा FIR हुआ है, आपने खुद देखा होगा, उसकी घर को मसमार भी किया गया है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द कानून की जो है गिरफ्त में आएगा। ये वाकया हुआ है तो हमारा नैरेटिव इस तरह क्यों फिट नहीं होता? इसमें क्या कमजोरियां आपको सामना करना पड़ रहा है? क्या ये नैरेटिव सामने नहीं जा रहा कि जब वहाँ पे कोई वाकया होता है वो जल्दी नाकामी करता है? देखिए, यही तो अलमिया है कि जो भी फतनतुल हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सर्ड जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत जल्द फैलती और उसको बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है। यही तो हम कहते हैं, 12 कहते आ रहे हैं कि हुकूमत जो बलूचिस्तान का जो असल जो मौक़िफ़ है वो दुनिया को बताया जाए। दूसरा ये कि जो दहशतगर्द कर रहे हैं बलूचिस्तान में उस पर भी बोला जाए। तो इस तरह आज पार्लियामेंटेरियंस का इधर बैठ के ये इसके ख़िलाफ़ बोलना भी मैं समझती हूँ कि उसी पॉजिटिव नैरेटिव को जो है वो प्रमोट करती है कि हम जो है बलूचिस्तान की हर उस पर, चाहे वो औरतें हों चाहे बच्चे हों, हर मजलूम की जो इंसानी हुकूक की जिन पे जो है वो हो रही हैं, तो हम हर उस मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमारा मौक़िफ़ वन साइडेड नहीं है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों का मौक़िफ़ वन साइडेड है, जो सिर्फ रियासत और हुकूमत पे बोलना चाहते हैं, वो दहशतगर्दों के मामले पे खामोश हैं,
वो इस तरह के वाक़यात पे खामोश हैं। हम बारहा दुनिया को बताते आ रहे हैं कि ये एक मुनज़्ज़म, एक बाकायदा एक उनका सिस्टम है जिनमें सिर्फ रियासत को नेगेटिव जहाँ दिखाना हो वो चीज़ें चलाते हैं। अदरवाइज बलूचिस्तान की इंसानी हुकूक से, बलूचिस्तान की लोगों की जो है वो मसाइल से उनका कोई लेना देना और कोई ताल्लुक नहीं। इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम सबको ना एक पेज पे होने की ज़रूरत है। सोसाइटी के तमाम सेगमेंट जितने भी हैं, इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो क्लियर है, चाहे वो आम सोसाइटी है, सबको वन पेज पे होने की ज़रूरत है। जब तक हम वन पेज पे नहीं होंगे हमारा बयानिया उस तरह से आगे नहीं जाएगा। हम लोग मुख्तलिफ डिफरेंट ओपिनियन रख के जो है मुल्क को पीछे रख के, मुल्क की सलामती को पीछे रख के, दहशतगर्दी की वॉर में इस वक्त हम हैं, सारी दुनिया को पता है, हम सबको पता है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सबको वन पेज होना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। कोयटा में सूबाई वज़ीर राहिला हमीद और डिप्टी स्पीकर ग़ज़ाला गोला, मुशीर मीना मजीद बलोच और पार्लिमानी सेक्रेटरी हादिया नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जानफशानी से काम कर रही है, दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। कोयटा में सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, डिप्टी स्पीकर ग़ज़ाला गोला, मुशीर मीना मजीद बलोच और पार्लिमानी सेक्रेटरी हादिया नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि उन्होंने कहा कि ख़वातीन को निशाना बनाकर दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद अपनी गुफ्तगू में कहा है कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। उन्होंने मज़ीद अपनी गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, बलूचिस्तान में अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम को फ़रोग़ देंगे, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोयटा में सूबाई वज़ीर राहिला हमीद और डिप्टी स्पीकर मुशीर मीना मजीद की दीगर अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जानफशानी से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। कोयटा में सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, डिप्टी स्पीकर मुशीर मीना मजीद की दीगर अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों औरतों को निशाना बना रहे हैं। आपको बताते चलें कि उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा कि ख़वातीन को निशाना बनाकर दहशतगर्दी को बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा है कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, बलूचिस्तान में अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम को फ़रोग़ देंगे। कोयटा में सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, डिप्टी स्पीकर ग़ज़ाला गोला, मुशीर खेल मीना मजीद की दीगर अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। आपको बताते चले उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द चार दीवारी की पामाली करके खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मासूम ख़वातीन को शहीद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नोशकी में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने माँ बेटी को शहीद किया है, उनका कसूर क्या था। आपको बताते चले कि कोयटा में सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ग़ज़ाला गोला, मुशीर खेल बलूचिस्तान मीना मजीद बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, औरतों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्द चादर और चार दीवारी पामाल करके खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। मीना मजीद बलोच का मजीद कहना था कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मासूम ख़वातीन को शहीद कर रखे हैं। नोशकी में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने माँ बेटी को शहीद किया, उनका क्या कसूर था। ख़वातीन को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस मौके पर ग़ज़ाला गोला का कहना था कि ख़वातीन को निशाना बनाकर दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। अस्मा जतक को इंसाफ मिलेगा। गयूर बलोचों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द पहाड़ों में छुपते हुए हैं, वहां से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए निकलते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जानफशानी से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा है कि बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली और तालीम को फ़रोग़ देंगे। आपको बताते चलें कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मासूम ख़वातीन को शहीद कर रही हैं। नोशकी में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने माँ बेटी को शहीद किया है, उनका कसूर क्या था। आपको बताते चले कि ख़वातीन को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ख़वातीन को निशाना बनाकर दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते।
कोयटा में सूबाई वजीर राहिला हमीद, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला, मुशीर खेल बलूच मीना मजीद बलूच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, औरतों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्द चादर और चार दीवारी पामाल करके खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। मीना मजीद बलूच का कहना था कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मासूम खवातीन को शहीद कर रहे हैं। नोशकी में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मां बेटी को शहीद किया, उनका कसूर क्या था? खवातीन को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस मौके पर गजाला गोला का कहना था कि खवातीन को निशाना बनाकर दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। असमत जतक को इंसाफ मिलेगा। गयूर बलोचों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द पहाड़ों में छुपे होते हैं, वहां से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए निकलते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जानिबशानी से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम को फरोग देंगे। आपको बताते चलें कि नोशकी में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मां बेटी को शहीद किया, उनका कसूर क्या था? अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।